نیوز اسٹوڈیوز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے کورونا وائرس کی۔ کورونا نے خاتون ٹیچر سمیت 11 افراد کی جان لے لی۔ مرض میں مبتلا سیشن جج ظفر اقبال کے لیے دل کا دورہ جان لیوا ثابت ہوا۔ پی ٹی آئی کے رکن اسمبلی میاں شفیع وائرس کا شکار۔ گواہا کے سرکاری اسکول کی 2 طالبات کا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ 7 اضلاع کے اسکولوں میں غیر نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس ایونٹس پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کورونا کے حملوں میں شدت آ گئی۔ مہلک وائرس مزید 11 زندگیاں نگل گیا۔ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 526 مریض سامنے آ گئے۔ شہر کے اسپتالوں میں 288 مریض داخل ہیں، جن میں سے 115 انتہائی نگہداشت وارڈز اور 19 مریض حالت تشویشناک ہونے پر وینٹیلیٹر پر زیر علاج ہیں۔ سیشن جج ظفر اقبال کورونا میں مبتلا تھے۔ اس دوران دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ انہیں اقبال ٹاؤن میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی میاں شفیع بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے ہیں۔ گورنمنٹ خانم گرلز ہائی اسکول حسین آباد کی ٹیچر فہمیدہ بانو مرض کے ہاتھوں وفات پا گئیں۔ گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول گوہاما میں 2 طالبات کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ایل ڈی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر اکاؤنٹس رضوان شوکت بھی کورونا میں مبتلا ہو گئے۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے 7 اضلاع میں غیر نصابی سرگرمیوں اور سپورٹس ایونٹس پر پابندی لگا دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق 20 سے زائد کورونا کیس مثبت آنے والے اضلاع میں غیر نصابی سرگرمیاں نہیں ہوں گی۔ کرکٹ کے میدان سے ایک اور مایوس کن خبر۔ پی سی بی کے ایک ملازم میں بھی کورونا وائرس کی تصدیق کی جا چکی ہے۔ پاکستان کرکٹ کیمپ میں بھی کورونا وائرس آ چکا ہے۔ کیمپ میں شامل تمام کرکٹرز کے کورونا ٹیسٹ ہوں گے۔ رپورٹ کلیئر آنے کے بعد ہائی پرفارمنس کیمپ دوبارہ شروع ہوگا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے دفاتر کو 4 دن کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ بے بس عوام پر مہنگائی کے وار۔ بجٹ سے پہلے بجٹ کے جھٹکے۔ گھی اور خوردنی آئل کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ درجہ دوم گھی 5 روپے بڑھ گیا، 255 روپے کلو میں فروخت۔ درجہ اول گھی کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں۔ انڈوں کا پارا بھی مزید چڑھ گیا ہے، 2 روپے مہنگے 160 کے درجن میں فروخت ہو رہے ہیں۔ ہر روز نیا ہی ریٹ آتا ہے۔ آج گھی لینے جاؤ تو اس کا کچھ ریٹ اور ہے، کل جاؤ تو اس کا کچھ اور ہے۔ اس حکومت نے مہنگائی پہ بالکل قابو نہیں پایا۔ مہنگائی بہت زیادہ ہو رہی ہے اور چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں ہے، پتہ نہیں چیک کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ کوئی بھی چیز انڈے وغیرہ لینے چلے گئے 20 روپے کا انڈا ہے، کہاں 6 روپے کا انڈا تھا، کیا سمجھے؟ تو غریب بندہ ویسے نہیں کھا سکتا، کیا کریں ہم؟ کم سے کم مہنگائی تو انی کر دے کہ غریب آدمی کھانا کھا لے۔ گھیو اتنا مہنگا کرتا ہے، غریب آدمی آٹا چینی گھیو نہ غرض ہے، انہوں نے اتنا مہنگا کرتا کی کرے؟ سر پیغام دے رہے ہیں خان صاحب، کچھ کم سے کم غریب عوام تے نظر کرم کرو۔ میں یہ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خدا کے لیے غریبوں کے لیے کچھ سوچیں۔ آپ غریبوں کا نام لے کر آئے ہیں، غریبوں کا ساتھ دینے کے لیے آئے ہیں۔ آپ غریبوں کو اور مزید غریب کر رہے ہیں اور ان کو مار رہے ہیں۔ حکومت نے مہنگائی کے اس دور میں عوام پر مزید بجلی گرا دی۔ محکمہ داخلہ نے گاڑیوں کی چالان فیس بڑھا دی ہے۔ 3 ویلر کو بھی جرمانوں میں شامل کر لیا گیا ہے۔ جرمانوں میں اضافے کو شہریوں نے مسترد کر دیا ہے۔ کے لیے ایک اور بری خبر سامنے آ گئی ہے۔ محکمہ داخلہ نے گاڑیوں کی فیس چلان میں اضافہ کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے 3 ویلر کو بھی جرمانوں میں شامل کر لیا ہے۔ جرمانوں کے نئے شیڈول کے مطابق موٹر سائیکل کا کم از کم جرمانہ 500 روپے ہوگا، جبکہ 3 ویلر کی اوور لوڈنگ کا جرمانہ 750 روپے کر دیا گیا ہے۔ 3 ویلر کی اوور سپیڈ کا جرمانہ 500 روپے ہوگا۔ کار کی اوور سپیڈنگ کا جرمانہ 1000 روپے۔ سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر اب 750 روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ پبلک وہیکل کا اوور سپیڈ کا جرمانہ 1000 روپے۔ پبلک وہیکل بس کی اوور لوڈنگ کا جرمانہ 1500 روپے ہوگا، جبکہ 20 پوائنٹس ہونے پر ڈرائیور کا لائسنس منسوخ کر دیا جائے گا۔ شہریوں نے جرمانوں کی شرح میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ محکمہ داخلہ نے جرمانوں کے پوائنٹس بھی مقرر کر دیے ہیں۔ جی، محکمہ داخلہ نے ٹریفک کے جرمانے بڑھا کر عوام پر ایک اور بم گرا دیا ہے اور عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ کیمرہ مین شاد محمود کے ساتھ کیسر کھوکر، سٹی فاٹو، سول سیکریٹریٹ۔ تمباکو اور سگریٹس کی مصنوعات خرید و فروخت پر دوبارہ ایکسائز ڈیوٹی عائد کرنے کا فیصلہ۔ ایکسائز نے سگریٹ نوشی کی روک تھام کے لیے ڈیوٹی میں اضافے کے ریٹس منظوری کے لیے سیکرٹری ایکسائز کو سمری بھجوا دی ہے۔ ایڈیشنل ڈی جی رضوان شہروانی کی جانب سے سگریٹ سمیت دیگر مصنوعات پر نئے ریٹس کے ساتھ لائسنس فیس کے اجراء کے لیے سیکرٹری ایکسائز کو مراسلہ بھجوا دیا گیا ہے۔ حکومت نے 1958 ٹوبیکو ایکٹ کو 2001 میں تمباکو مصنوعات پر عائد معمولی ایکسائز ڈیوٹی ختم کر دی تھی، جس پر دوبارہ آمد درآمد کے احکامات جاری کیے گئے تھے۔ نئے ریٹس کے مطابق دکانوں کو اسٹیٹس کے مطابق ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ 5 ملازمین کی دکان پر 50,000 روپے ڈیوٹی، 2 ملازمین والی دکان کو 30,000 روپے اور 1 ملازم والی دکان پر 20,000 روپے ڈیوٹی عائد کی جائے گی۔ شہری حدود کے اندر سگریٹس بیچنے والوں سے 5,000 ڈیوٹی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ پنجاب ٹوبیکو ایکٹ میں ترمیم کرنے کے لیے تجویز بھجوا دی گئی ہے۔ سیکرٹری کی منظوری کے بعد حتمی فیصلہ حکومت کرے گی۔
अभी आपको बताएं कि LWMC का मिशन क्लीन लाहौर नारों से आगे न बढ़ सका। पौश इलाके भी कचरा कुंडी बन चुके हैं। गुलबर्ग, मेन मार्केट, मिनी मार्केट, लिबर्टी और गालिब मार्केट में जा बजा कूड़े के ढेर लगे हैं। पसमानदा और नवाही इलाकों में सूरत हाल मजीद खराब है। शहरी 3 माह से सफाई के मसले का हल न करने वाली इंतजामिया पर बरस पड़ा। सफाई मिशन का एक और दावा कूड़े तले दब गया। शहर के पोश इलाकों में जा बजा कचरे के ढेर इंतजामिया को आईना दिखा रहे हैं। गुलबर्ग मेन मार्केट, मिनी मार्केट, लिबर्टी, गालिब मार्केट, फैसल टाउन, इंटरनेशनल मार्केट, फैसल चौक और कोटापिंड में कूड़ा सड़कों की जीनत बना हुआ है। LWMC ने रेंटल मशीनरी के साथ सफाई मिशन का दावा किया था, लेकिन अमली तौर पर किसी इलाके में इंतजामिया नजर नहीं आई। सूरत हाल से तंग शहरी इंतजामिया की नाकुस मनसूबा बंदी पर कड़ी तनकीद कर रहे हैं। कोरोना से ज्यादा डर हमें इस कचरे का, क्योंकि यहाँ से उठने वाला ताफून और जो बीमारियां हैं, यहाँ पे मलेरिया और डेंगू जैसे मच्छर भी इसी कचरे की वजह से पैदा होते हैं। पिछले 6 माह से पड़ा है, इसकी वजह से बड़ा मसाइल पेश आ रहा है। अक्सर कात ये दूसरा बीमारी फैलने का खदशा है। मच्छर और मक्खियाँ अक्सर यहाँ पे डिस्टर्ब करती हैं। पीको रोड और लियाकताबाद कॉलोनी में भी सफाई की अब तक सूरत हाल से शहरी बेजार। शहरियों का कहना है कि 3 माह से इंतजामिया सफाई का मसला हल नहीं कर सकी। ये उनकी नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। शहर भर के इलाकों में गंदगी और गिलासत के ढेर लगे हुए हैं और भरे हुए कचरा दानों की वजह से ताफून फैल रहा है। जो एक तरफ वबाई इमराज तो दूसरी जानब ताफून से मुकामी लोगों की जिंदगी अजीरन हो गई है। और मुकामी लोगों का जिले इंतजामिया से सिर्फ यही मुतालबा है कि शहर भर से इस कूड़े को जल्द से जल्द उठाया जा सके ताकि वो सुबह का सांस लें। कैमरामैन अली शेख के साथ असमत अवान, CD42। सेक्रेटरी बल्दियात सफाई मिशन के लिए मैदान में आ गए। नूरुल अमीन मेंगल के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, सफाई की सूरत हाल में जल्द बेहतरी लाने का दावा कर दिया। सेक्रेटरी बल्दियात नूरुल अमीन मेंगल ने सफाई मिशन के लिए कमर कस ली। वहदत रोड, मुस्लिम टाउन, इकबाल टाउन, यतीम खाना चौक में सफाई की सूरत हाल का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी बल्दियात ने कहा कि ट्रांजिट पॉइंट से वेस्ट कलेक्शन का ठेका दे दिया गया है। कूड़ा उठाने के लिए टीमों को प्राइमरी और सेकेंडरी 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। नूरुल अमीन मेंगल के मुताबिक कचरे की कलेक्शन के लिए 6000 कंटेनर्स खरीदे जा रहे हैं। शहरियों को प्लास्टिक के थैले भी फराहम किए जाएंगे। हम कचरा कहाँ फेंके, या तो डब्बे हों, कंटेनर्स हों, उधर फेंके। उधर नहीं है तो लोगों ने तो सड़क पे फेंकना है उसको। इसी वजह से कचरा विजिबल ज़्यादा हुआ होगा। तो इनको 6000 डब्बों की अप्रूवल भी दे दी है पूरे लाहौर में। वो उसकी भी प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, वो भी आपके आने वाले दिनों में नजर आ जाएंगे। सेक्रेटरी बल्दियात LWMC की वर्कशॉप भी गए। वर्कर्स को 2 माह से रुकी तनख्वाहें अदा करने की यकीन दहानी कराई, जिस पर उन्होंने हड़ताल खत्म कर दी। नूरुल अमीन मेंगल ने वर्कर्स को पूरी लगन से काम करने, मशीनरी को जल्द अज जल्द कारआमद बनाने की हिदायत जारी की। उनका कहना था कि लाहौर हम सब का घर है। घर की सफाई करना मुलाजमत के साथ साथ इबादत भी है। औरत माँ है, बहन है, बेटी है और इसके साथ वर्किंग वुमेन भी है। ख़वातीन को जब भी मौका मिला जिंदगी के हर शोबे में अपनी हैसियत को तस्लीम कराया है। वुमेन डे पर देखते हैं अनाशिया पाशा की रिपोर्ट। ख़वातीन को घर तक महदूद रखने का तस्वर पुराना हो गया। पहले किसी हद तक तिब और तदरीस के शोबे ही ख़वातीन के लिए मखसूस समझे जाते थे, लेकिन अब औरत हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना काम कर रही है और जिंदगी का कोई शोबा ऐसा नहीं जहां ख़वातीन की नुमाइंदगी ना हो। आई थिंक कि अगर इसी तरह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फीमेल्स को मिलती रहें और उनको इसकी अवेयरनेस भी हो तो डेफिनेटली हम बहुत सी चीज़ों को तदारुक कर सकते हैं, बहुत से क्राइम रेट्स को, कंप्लेंट्स को। ख़वातीन ने दीगर शोबों की तरह सियासी मैदान में भी खुद को मनवाया है। आज के दिन हमने अज़म करना है कि सोशल और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हमने यकीनी बनानी है ख़वातीन की। मर्दों के माशरे में ख़वातीन को अपनी हैसियत मनवाने के लिए ख़ास मेहनत करना पड़ती है। ज़रूरत इस बात की है कि औरत को भी माशरे में मर्द के मसावी हकूक़ दिए जाएं। दुनिया के किसी शोबा ज़िंदगी में ख़वातीन मर्दों से पीछे नहीं। हम सबको चाहिए कि एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें ताकि एक कामयाब माशरे को तश्कील दे सकें। कैमरामैन अदिल चौधरी के साथ अनाशिया पाशा, CD42। पंजाब हुकूमत शहर में एयरपोर्ट तर्ज के बस टर्मिनल की तामीर पर निजी सरमायाकारों का सहारा लेगी। टोकर नियाज़ बेग पर मुल्क की सतह का पहला जदीद बस टर्मिनल पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनेगा। पंजाब हुकूमत ने बस टर्मिनल के लिए निजी एडवाइज़र भी हायर करेगी। हुकूमत ने इब्तदाई तौर पर निजी एडवाइज़र की सहूलत के लिए 3 करोड़ का पैकेज भी मंजूर कर लिया है।
शहर में मुल्की सतह के जदीद बस टर्मिनल मंसूबे पर नई पेशरफ्त हुई है, जिसके मुताबिक पंजाब हुकूमत इस मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत तामीर करने जा रही है। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर सलमान शाह की सरबराही में इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में प्रोजेक्ट के लिए PDF की मद में 3 करोड़ रुपए के फंड्स मंजूर किए गए। फंड से निजी एडवाइजर की मदद ली जाएगी जो इस मंसूबे पर तकनीकी तौर पर लाहे अमल तय करेगी। एडवाइजर जदीद बस टर्मिनल से ज़राए आमदन के हसूल का प्लान भी तैयार करेगा, जबकि ट्रैफिक का प्लान और सरकारी बस अड्डों के मुस्तकबिल के बारे में भी एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार की जाएगी। दूसरी जानिब ID बस टर्मिनल मंसूबे के लिए 3 अरब रुपए का तखमीना लगा चुकी है, जबकि इसका इब्तदाई तौर पर डिजाइन भी तैयार कर लिया गया है। बड़े शहरियों में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए पंजाब हुकूमत का एशियन डेवलपमेंट बैंक के इश्तराक से बड़ा मंसूबा शुरू करने का फैसला कर लिया गया है। 600 मिलियन US की लागत से इंटरमीडिएट सिटी इम्प्रूवमेंट और इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने लाहौर समेत पंजाब के बड़े शहरों के करीब मौजूद छोटे शहरों व कस्बों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से पंजाब में 600 मिलियन US की लागत से इंटरमीडिएट सिटी इंप्रूवमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम शुरू करेगी। मंसूबे के तहत पंजाब में तरक्याती काम करवाए जाएंगे। छोटे शहरों और कस्बों की अपग्रेडेशन और सहूलियात की फराहमी से बड़े शहरों का रुख करने वालों में कमी आ जाएगी। लाहौर में बढ़ती आबादी को रोकने के लिए शेखुपुरा ननकाना में तरक्याती पैकेजेस दिए जाएंगे। मंसूबे को 2 फेज में मुकम्मल किया जाएगा। पहले फेज में 250 मिलियन US मंसूबे पर खर्च किए जाएंगे। फेज 1 के लिए $200 मिलियन एशियन डेवलपमेंट बैंक फराहम करेगा, जबकि $50 मिलियन हुकूमत पंजाब अदा करेगी। वो सहूलियात जिनकी वजह से लोग बड़े शहरों का रुख करते हैं, उनको छोटे शहरों में बेहतर किया जाएगा। मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए $3 मिलियन की लागत से 3 साल के लिए 7 कंसल्टेंसी फर्मों को हायर किया जाएगा, जो कि मंसूबे का जामिया प्लान तरतीब देंगी। कंसल्टेंसी फर्मों की हायरिंग के लिए PC2 तरक्याती बोर्ड को जमा करवा दिया गया है। मंसूबे के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की तामीर, अर्बन ट्रांसपोर्ट, पानी, ड्रेनेज, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट, पार्क्स और रोड्स की तामीर समेत दीगर काम करवाए जाएंगे। बाअसर शख्सियत के टेलीफोन का कमाल, डेरा गुजरां से मुल्हिका आबादियों की सुनी गई। मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट तैयार कर लिए गए। 6 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से सीवरेज सिस्टम नस्ब होगा। हुकाम बाला ने सीवरेज से मुताल्लिक शिकायत पर डेरा गुजरां और मुल्हका आबादियों के लिए मेगा सीवरेज प्रोजेक्ट तैयार कर लिया है। सीवरेज सिस्टम की 12 स्कीमों पर 6 करोड़ 31 लाख की लागत आएगी। कमिश्नर लाहौर जुल्फकार अहमद गुमर ने डेरा गुजरां के यूनियन कौंसिल 175 के मेगा तरक्याती मंसूबे की मंजूरी दे दी। सीवरेज डिस्पोजल स्टेशन की तामीर पर 3 करोड़ 96 लाख 63 हजार लागत आएगी। सीवरेज सिस्टम लाइन 41 लाख 54 हजार जबकि 33 लाख 75 हजार में मतलूबा मशीनरी खरीदी जाएगी। लैंड एक्विजिशन के लिए 60 लाख जबकि लेस्को की लाइन्स के लिए 48 लाख का तखमीना तैयार किया गया है। एक बार फिर तारीखी इमारत की असल हालत में बहाली का फैसला, मरहलावार तज़यीन और आराइश की मनसूबाबंदी मुकम्मल कर ली गई। पहले मरहले में म्यूनसिपल इदारों के जेरे कंट्रोल तारीखी इमारत की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। बल्दियाती इदारों के जेर कंट्रोल तारीखी म्यूनसिपल इमारतों की असल हालत में बहाली अवलिन तरजीहात में शामिल की गई है। महकमे बल्दियात ने शहर की तारीखी सरकारी और निजी इमारतों का डाटा तलब कर लिया है। महकमे बल्दियात ने चीफ कॉर्पोरेशन ऑफिसर से शहर भर की तारीखी इमारतों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पहले मरहले में बल्दियाती इदारों की तारीखी इमारतों के तारीखी पहलुओं की तफसीलात जमा कराना होगी। तारीखी म्यूनसिपल बिल्डिंग्स की हाई क्वालिटी तस्वीर और तारीखी पस मंजर बजरिए ईमेल अरसाल किए जाने की हिदायत की गई है। महकमे बल्दियात के मुताबिक व्हाट्सएप पर अरसाल की गई तस्वीर और डाटा काबिल कबूल नहीं होगा। दूसरे मरहले में निजी तारीखी इमारतों की तज़यीन और आराइश हो सकेगी। हुकूमत पंजाब में उल्टी गंगा बहने लगी। ग्रेड 20 के खालिस्तान सीटों पर ग्रेड 21 के अफसरान तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 20 के अफसरान सेक्रेटरी लगने के लिए मुंह तकते रह गए। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी का बावा आदम ही निराला है। ग्रेड 20 के अफसरान तैनाती के लिए मुंह तकते रह गए। हुकूमत ने ग्रेड 21 के अफसरान को छोटी सीटों पर तैनात कर दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 21 के अफसर सैयद अली मुर्तजा को ग्रेड 20 की सीट पर तैनात कर दिया गया। ग्रेड 21 के अहमद रजा सरवर को ग्रेड 20 की सेक्रेटरी कोऑपरेटिव की सीट पर लगा दिया गया। ग्रेड 21 के ऑफिसर नबील जावेद को ग्रेड 20 की सीट पर तैनात किया गया है, जबकि शहरियार सुल्तान को ग्रेड 20 की सेक्रेटरी फूड की सीट पर लगा दिया गया। इसी तरह ग्रेड 21 के ऑफिसर साकिब जफर को ग्रेड 20 की सेक्रेटरी लाइव स्टॉक की सीट पर तैनात कर दिया गया और ग्रेड 21 के अफसर वकास अली महमूद को ग्रेड 20 की सेक्रेटरी एक्साइज की सीट पर लगा दिया गया है। ग्रेड 20 की सीटों पर तैनाती के लिए ग्रेड 20 के अफसरान मुंतजिर थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 10 लाख तलबा दाखिल करने के दावे धरे के धरे रह गए। अथॉरिटीज़ की नाहली के बायस दाखिलों के लिए हज़ारों तालीमी इदारों में स्कूल काउंसिल्स को फाल न किया जा सका।
लाहौर समेत पंजाब भर के सरकारी स्कूलों में 10 लाख तलबा के दाखिलों के दावे धरे रह गए। तफसीलात के मुताबिक नए दाखिलों के लिए बेशतर तालीमी इदारों में स्कूल कौंसिल फाल ही नहीं हो सकी। एक माह गुजर जाने के बावजूद हजारों स्कूलों में दाखिलों का 10% हदफ भी पूरा न हो सका। दाखिला मुहिम का आगाज 1 फरवरी 2021 को किया गया था। एजुकेशन अथॉरिटी की अदम दिलचस्पी के बायस लाहौर के स्कूलों में भी दाखिलों का हदफ पूरा करने में मुश्किलात का सामना है। लाहौर में पहले से दाखिल सैकड़ों तलबा के बेफॉर्म का अंदराज ही मुमकिन नहीं हो सका। महकमे स्कूल एजुकेशन के मुताबिक दाखिलों के हवाले से स्कूल कौंसिल को फाल करने का सिलसिला जारी है। उनका कहना था कि दाखिलों का हदफ पूरा करने के लिए अभी 5 माह बाकी हैं। आइंदा 5 माह में स्कूलों में 10 लाख बच्चों के दाखिलों का हदफ यकीनन पूरा कर लिया जाएगा। खुराक, अद्वियात और खादों में शहरियों को मिलावटी अनासर से बचाने का मंसूबा ताख़ीर का शिकार। पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की इमारत और टेस्टिंग लेबॉर्ट्रीज की तकमील मजीद 1 साल के लिए लटक चुकी है। लागत में 66 करोड़ 50 लाख का इजाफा हो चुका है। जून 2022 नई डेडलाइन मुकर्रर कर दी गई। समेत पंजाब भर में मिलावट माफिया के खिलाफ घेरा मजीद तंग करने के लिए पंजाब एग्रीकल्चर फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की बिल्डिंग और लेबोरेटरी ठोकर नियाज बेग पर तामीर की जा रही है। तकमील सुस्त रवि के बायस मजीद 1 साल की ताखीर का शिकार हो गई। मंसूबे को रवां साल जून की बजाय अब जून 2022 में मुकम्मल करने की नई डेडलाइन दी गई है। मंसूबे में 1 साल ताखीर के बायस लागत में 66 करोड़ 50 लाख का इजाफा हुआ, जिससे मंसूबे की लागत 6 अरब 98 करोड़ 80 लाख तक जा पहुंची है। मंसूबे का मकसद अद्वियात, खुराक और फर्टिलाइजर्स की टेस्टिंग के लिए टेस्ट ऑफ द आर्ट इंटरनेशनल लेबोरेटरी का क़याम है। माली साल 2020-21 के 8 माह मुकम्मल हो चुके हैं। रेलवे खसारे में बतदरीज इजाफा हो रहा है। महकमा रेलवे रवा माली साल के पहले 8 माह में आमदनी का हुकूमती हदफ पूरा करने में नाकाम हो गया। पहले 8 माह के इख्तिताम पर आमदनी की मद में 16 अरब 16 करोड़ 97 लाख 47 हजार रुपये का खसारा रहा। रेलवे को 8 माह में 46 अरब 93 करोड़ 56 लाख 62 हजार रुपए का आमदनी हदफ दिया गया था। इस दौरान रेलवे को सिर्फ 30 अरब 76 करोड़ 59 लाख 15 हजार रुपए आमदन ही हासिल हो सकी। रेलवे को आमदनी मुसाफिर, फ्रेट, प्रॉपर्टी एंड लैंड, सन्ड्री और मुतफरिद कोचेस की मद में हासिल हुई। मुसाफिर ट्रेन के हदफ से 12 अरब 56 करोड़ 70 लाख रुपए कम आमदन हासिल हुई। गुड्स ट्रेनों के हदफ से 2 अरब 33 करोड़ 57 लाख 16 हजार कम आमदनी हासिल हुई। रेलवे ज़राए के मुताबिक 8 माह के अहदाफ की निस्बत रेलवे को 34% कम आमदनी हासिल हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को धचका। वफाकी और सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली के हल्कों की तरक्याती स्कीम्स के टेंडर्स बदस्तूर मनसूख कर दिए गए। मजमूई तौर पर 15 करोड़ से जायद मालियत की तरक्याती स्कीमों के टेंडर का वक्त बढ़ाना भी बेसूद रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एक मरतबा फिर टेंडर्स का बायकॉट कर दिया। अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के हल्कों की तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स के लिए 7 बजे तक का बढ़ाया गया वक्त भी राय का क्या। कॉन्ट्रैक्टर्स ने बायकॉट जारी रखा। कॉन्ट्रैक्टर्स ने एडमिनिस्ट्रेटर ऑफिस के बाहर एहतजाज किया और वाजिबात की अदायगी तक तरक्याती स्कीमों का बायकॉट जारी रखने का ऐलान किया। वफाकी वज़रा मियां हमाद अजहर, शफकत महमूद, सूबाई वज़ीर सनअत और तजारत मियां असलम इकबाल, रुकन कौमी असम्बली मलिक करामत अली खोकर, रुकन सूबाई असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा के हल्कों के तरक्याती स्कीमों के टेंडर्स मनसूख हुए। 15 करोड़ से जायद मालियत के टेंडर्स मंसूख किए गए। टेंडर्स ओपन करने से कबल कॉन्ट्रैक्टर्स ने बायकॉट किया तो टेंडर्स मंसूख कर दिए गए। कॉन्ट्रैक्टर्स का कहना था कि वाजिबात की अदायगी न करने पर टेंडर्स का बायकॉट किया गया। उधर चीफ मेट्रोपॉलिटन ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर अब्दुल कयूम खान नियाजी का कहना था कि जिन तरक्याती स्कीमों में शिकायत हैं उनकी अदायगी रोकी गई है। तब्दीली सरकार कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और तिबी अमले को खुसूसी अलाउंस देने के ऐलान को भूल गई। 1 बरस कबल वजीर आला ने खुसूसी अलाउंस देने का हुक्म दिया, लेकिन अमल दरामद ही नहीं हो सका। बात टीचिंग अस्पतालों से कोरोना ड्यूटी देने वालों की बार बार लिस्टें तलब करने से आगे न बढ़ सकी। खुसूसी अलाउंस ना मिलने पर डॉक्टर्स और अमला मायूसी से दो चार हैं। मार्च 2020 के दौरान पंजाब में कोरोना वायरस की वबा फूटने पर वज़ीर आला पंजाब ने ऐलान किया कि तमाम डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिक्स जो कोरोना ड्यूटी पर मामूर हैं उनको बुनियादी तनख्वाह के बराबर माहाना खुसूसी कोरोना अलाउंस दिया जाएगा। हस्पतालों की निजकारी के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस 4 रोज से सरापा एहतजाज है। सर्विसेज हॉस्पिटल में एहतजाजी कैंप जारी। कल आउटडोर में भी हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। टीचिंग हॉस्पिटल की निजकारी के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ ग्रैंड हेल्थ अलायंस पाकिस्तान सर्विसेज हॉस्पिटल में सरापा एहतजाज है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस की जानिब से एडमिन ब्लॉक के सामने एहतजाजी कैंप जारी है। GHA के मरकजी सदर डॉक्टर हामिद भट्ट ने ऐलान किया है कि मंगल से सर्विसेज हॉस्पिटल के आउटडोर में भी हड़ताल होगी। डॉक्टर्स और अमला इंडोर में भी काम छोड़ देगा। ग्रैंड हेल्थ अलायंस का मुतालबा है कि हुकूमत निजकारी के कानून के निफाज का फैसला वापस ले।
पैसे दो प्रमोशन लो। आईजी ऑफिस में इंस्पेक्टर से डीएसपी रैंक में तरक्की के लिए रिश्वत चलने लगी है। आईजी ऑफिस के अमले की जानिब से रिश्वत मांगने पर इंस्पेक्टर ने थाना नारकली में मुकदमा दर्ज करवा दिया। थाना नारकली में दर्ज होने वाली एफआईआर के मुताबिक आईजी ऑफिस का अमला इंस्पेक्टर से प्रमोशन के लिए रिश्वत मांगने लगा है। गुजरांवाला के इंस्पेक्टर से डीएसपी तरक्की के लिए 10 लाख रुपए मांगे गए, जो बाद में 2.5 लाख रुपए पर तय हुआ। ताहम इंस्पेक्टर ने पैसे देने की बजाय आईजी ऑफिस के अमले के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमा इंस्पेक्टर अली अकबर की मुद्दत में आईजी ऑफिस की एग्जेक्टिव ब्रांच के एहलकार शहजाद के खिलाफ अनारकली थाने में दर्ज किया गया। एफआईआर में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इंस्पेक्टर अली अकबर 2020 में भी तरक्की से महरूम रहा था और अब होने वाले महकमाना प्रमोशन बोर्ड से पहले इससे रिश्वत तलब की गई थी। दूसरी जानब थाने में तहाल इस मुकदमे की तफ्तीश के लिए किसी को तफ्तीशी अफसर तक तैनात नहीं किया गया, जिससे पुलिस की ऐसे करप्ट एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई गैर संजीदा दिखाई देती है। आपको बताएं कि तालबी सफीर लाहौरियों की मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए, अजायब घर का दौरा किया। तारीखी नवादरात और गंधारा आर्ट में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इटालियन सफीर सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस भी आए, मुख्तलिफ शोबे देखे, स्टेट ऑफ द आर्ट न्यूज रूम को सराहा। इटली के सफीर एंड्रेस फेरारेसे ने अजायब घर का दौरा किया। अतालवी सफीर ने नवादरात, गंधारा तहजीब और आर्ट के नमूनों में गहरी दिलचस्पी ली और अजायब घर की राहदारियों में तस्वीर बनवाई। सिटी 42 से गुफ्तगू करते हुए मेहमान सफीर ने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा अतालवी सयाह आएं, लाहौरियों की मेहमान नवाजी, सकाफत और तारीखी अहमियत से रोशनास हों। I really wish that we will have an increasing of Italian tourists and visitors that they can benefit of the same beauty, and I'm sure there will be a huge interest. इटली के सफीर ने सिटी न्यूज नेटवर्क के हेड ऑफिस का दौरा किया। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी, चीफ एडिटर सलीम बुखारी, डायरेक्टर प्रोग्रामिंग खुरम कलीम, डायरेक्टर न्यूज 24 मियां ताहिर, कंट्रोलर न्यूज 24 अहमद वलीद ने इस्तकबाल किया। अतालवी सफीर ने न्यूज स्टूडियोज, प्रोग्राम स्टूडियोज, असाइनमेंट डेस्क, न्यूज प्रोडक्शन, कॉपी डेस्क, न्यूज पेपर सेक्शन समेत मुख्तलिफ शोबों का विजिट किया। उन्होंने सिटी न्यूज नेटवर्क के न्यूज रूम को आलमी मयार के मुताबिक करार दिया। पानी काउंसिल जनरल मोहम्मद रजा नाजरी और डायरेक्टर खाना फरंग ईरान ने जलानी पाक में जश्न बहारा फेस्टिवल का दौरा किया। चेयरमैन BHA यासिर गिलानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और मेले के मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा कराया। मोहम्मद रजा नाजिर ने कहा कि मेले का देही कल्चर देखकर बहुत खुशी हुई। यहाँ आकर पाकिस्तानी सकाफत को करीब से देखने का मौका मिला। डेवलपमेंट डायरेक्टर ब्रिटिश हाई कमीशन एनाबेल गैरी ने सुए हासिल गाँव में सूरज सोशल फ्रेंचाइज क्लिनिक का दौरा किया। दौरे का मकसद गाँव में फैमिली प्लानिंग प्रोजेक्ट का जायजा लेना था। एनाबेल गैरी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि बरतानवी हुकूमत पाकिस्तान में सेहत और फैमिली प्लानिंग में बढ़ चढ़ कर इमदाद करती है। जिले इंतजामिया के तहत खवातीन के आलमी दिन पर खुसूसी नशिस्त हुई। सरबरा अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने खवातीन को विरासत में हिस्सा देने पर जोर दिया। मुकर्ररीन ने खातून खाना और वर्किंग वुमेन दोनों हैसियत से खातीन के किरदार का एतराफ़ किया। खवातीन को जायज मुकाम और हकूक दिए बगैर मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। जिले इंतजामिया के तहत पैनल ऑफ डिस्कशन में मुख्तलिफ शोबों की नुमाया शख्सियात ने इस नुक्ते पर इत्तफाक किया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने कहा कि कोरोना की वबा में भी खवातीन ने मर्द हेल्थ वर्कर्स के साथ शाना बशाना काम किया। दफा जो थीम है जो पूरे दुनिया के अंदर वो यही कोविड बेस्ड है। पेंडेमिक के बाद जो खवातीन की एज अ लीडरशिप रोल है। सरबरा अखुवत फाउंडेशन डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि औरत से कुर्बानी का तकाजा तो किया जाता है लेकिन हक नहीं दिया जाता। खवातीन को विरासत में हिस्सा दिलाने के लिए कॉल ऑफ एक्शन की जरूरत है। औरतों के हकूक, ज़ाहिर है ये कहना कि औरतों को मर्दों ने हकूक देने गलत है। औरतों को हकूक हमारा दीन देता है। मुकर्रीन का कहना था कि औरत ने घर भी संभाला है और जहां मौका मिला पेशा वराना अमूर में भी मिसाल कायम की। मर्दों के मुआशरे में खवातीन को रियायत की नहीं मुसावी हकूक देने की जरूरत है। Put yourself into multiple fields. When you are at an exposure of multiple arenas, आपकी leadership skills develop होती हैं। और फिर चाहे कोविड आए, चाहे कोई भी बड़ा बोल नहीं बोल रही हूँ मैं, ये मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, चाहे कोविड आए, चाहे कुछ भी हो, you have something in your hand। मर्द और औरत गाड़ी के दो पहिए, बड़ी घिसी पिटी सी बात है, लेकिन हकीकत है कि वो सिर्फ गाड़ी के ही दो पहिए नहीं है, वो इस मुआशरे के भी बड़े इम्पोर्टेंट दो पहिए हैं। I used to stand in front of men like anything, like a rock, and I did achieve a lot in just 13 months of my life। चेयरमैन रोयते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा कि इस्लाम ने तो औरत को 1400 साल पहले हकूक दे दिए थे, जरूरत अमली इक़दामात की है। मुआशरे के अंदर जिस तरह आज खवातीन एक अजीम रोल अदा कर रही हैं उसको हम सराहते हैं।
वर्ल्ड वुमेन डे की इस निशस्त में रमीजा मजीद निजामी, जुल्फिशां और आयशा जहांजेब ने भी इजहार ख्याल किया। डिस्कशन के इख्तिताम पर सवालों जवाब का सेशन भी हुआ। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। UMT में खवातीन के आलमी दिन के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरपर्सन वुमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन, तालिब इल्म और असातिज़ा ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में तकरीब का इनेकाद विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप की जानिब से किया गया। तकरीब में चेयरपर्सन विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड लीडरशिप डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, ख्वातीन तलबा, असातिज़ा और फैकल्टी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। डॉक्टर नौशाबा हसन मुराद का कहना है कि आज ख्वातीन के आलमी दिन पर यहाँ इकट्ठा होने का मकसद ख्वातीन की जद्दोजहद पर रोशनी डालना है। ख्वातीन माशरे के तमाम शोबों में मर्दों के शाना बशाना अपना किरदार अदा कर रही हैं। पैनल डिस्कशन के सेशन में मुकर्ररीन ने कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख्वातीन के हुकूक और फराइज पर रोशनी डाली। डॉक्टर नौशाबा ने तकरीब के एहतमाम पर मुकर्ररीन में सवेनियर्स, शील्ड्स भी तकसीम की। फ़नून लतीफ़ा के बड़े नामों को खराज तहसीन पेश करने का दिन वुमेन डे की मुनासबत से अलहमरा में तस्वीरी नुमाइश का इनेकाद किया गया। अदब, शायरी, गुलकारी और अदाकारी में नाम बनाने वाली 60 खवातीन के पोर्ट्रेट नुमाइश की जीनत बने। आर्ट गैलरी में सजी वजूदे जन कमाल फन के उन्वान से तस्वीरी नुमाइश, जिसमें अदब, शायरी, गुलकारी और अदाकारी में नाम बनाने वाली 60 खवातीन के पोर्ट्रेट रखे गए हैं। मलका तरन्नुम नूरजहां, आबदा परवीन, बानो कुदसिया, फातिमा सुरैया बजिया, परवीन शाकिर, रेशमा, नाजिया हसन समेत तमाम कदावर खवातीन के पोर्ट्रेट मरकज़े निगाह हैं। आर्ट्स काउंसिल के डायरेक्टर जुल्फकार जुल्फी का कहना है कि नुमाइश का मकसद फनून लतीफ़ा में नाम बनाने वाली खवातीन को खिराज तहसीन पेश करना है। 60 खवातीन में सिर्फ और सिर्फ आर्ट से रिलेटेड लोग, म्यूज़िक, ड्रामा, डांस, लिटरेचर और एक्टिंग, तमाम इनसे रिलेटेड ख़वातीन की इसमें नुमाइंदगी है। और ये देखकर इतनी इंतहाई ज़्यादा खुशी है कि इतनी नामवर ख़वातीन हमारे मुल्क की हैं। शुरका ने लाहौर आर्ट्स काउंसिल के इक़दाम को सराहा, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि इस फील्ड के छुपे टैलेंट को सामने लाने की ज़रूरत है। मैं इनके बारे में देखते हुए मुझे सब वो ख़वातीन याद आती हैं जो सारा वक्त घर में कहानी लिख नहीं रही होती, लेकिन अपने कभी मसालों से, कभी अपनी कढ़ाई से, कभी अपने बागबानी से वो एक और कहानी लिखती हैं। और वो कहानी जो है वो बग़ैर सुने, बग़ैर सुनाए वो इस दुनिया से गुजर जाती। अलहमरा आर्ट गैलरी में तस्वीरी नुमाइश 7 रोज़ तक लगी रहेगी। ख़वातीन ने भी हर शोबे में तरक्कियाँ समेटी और कामयाबियाँ हासिल की। आज का दिन उन्हीं ख़वातीन के नाम से जाना जाता है। कैमरामैन अदील चौधरी के हमरा ज़ैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। ख़वातीन का आलमी दिन, पार्क लेन होटल में शानदार तकरीब का इनेकाद, कोका कोला कंपनी की वर्किंग लेडी समेत दीगर की शिरकत। पार्क लेन होटल में वुमेन डे के हवाले से तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ख़वातीन ने अपने शोबा ज़िंदगी के हवाले से दिलचस्प वाक़यात बयान किए। इस मौके पर होटल डायरेक्टर रुबाब दाहा ने कहा कि ख़वातीन हर शोबे में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। औरतें मुआशरे का अहम तरीन हिस्सा हैं। उन्होंने तकरीब में मौजूद ख़वातीन को हौसला बुलंद रखने की ताकीद की। पार्क लेन होटल के दिलचस्प खानों और म्यूजिक ने तकरीब में 4 चांद लगा दिए। तकरीब के इख्तिताम पर वुमेन डे की मुनासबत से केक भी काटा गया। पार्क लेन होटल की जानिब से होटल की फीमेल स्टाफ और कोका कोला की टीम को गिफ्ट्स भी दिए गए। तकरीब में डायरेक्टर पार्क लेन रुबाब दाहा, HR मैनेजर हिरा, कोका कोला की जानिब से फैसल हाशमी डायरेक्टर ह्यूमन रिसोर्सेज, इंजीनियर तूबा गौरी ने भी शिरकत की। मलिक हनीफ मेमोरियल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में सिटी जिमखाना क्लब ने शाइनिंग क्लब को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। अलीगढ़ ग्राउंड पर शाइनिंग क्लब ने पहले खेलते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 148 रन बनाए। उमर फारूक 56 और मोइन ताहिर 37 रन बनाकर नुमाया रहे। जवाब में सिटी जिमखाना ने 18 ओवर्स में 4 विकेट्स के नुकसान पर 149 रन बनाकर मैच में कामयाबी हासिल कर ली। जहांगीर मिर्जा 94 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अभी आपको बताएं कि मारूफ गुलकारा आबदा परवीन रागा बॉयज़ म्यूजिकल ग्रुप के नए गाने में परफॉर्म करेंगी। गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल कर ली गई हैं। मारूफ गुलकारा आबदा परवीन रागा बॉयज़ म्यूजिकल ग्रुप के नए गाने में परफॉर्म करेंगी।
शाम 84 घराने के मारूफ गुलकार हामिद अली खान के साहबजादों वली हामिद अली, नायाब अली खान और इनाम अली खान के म्यूजिकल बैंड के नए गाने में आबदा परवीन भी परफॉर्म करेंगी। गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग्स मुकम्मल कर ली गई हैं, जबकि इस गाने की वीडियो भी रिकॉर्ड कर ली गई है। वीडियो में भी आबदा परवीन अपने मुनफरिद अंदाज से गायकी गाते हुए नजर आएंगी। गाना जल्द ही रिलीज किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए सिरी 42।